Good morning, dear students. In today's class, we are going to study about biopolymers. Biopolymers are those polymers which are biodegradable. They are degraded by enzymatic action. There is no need of degradation by any chemical process. They are degraded by themselves. Okay. There is a definition of biopolymers. These are biologically important substances such as carbohydrates, proteins and nucleic acids which control various life process. हमारे जीवन की हमारी लाइफ की जो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं उनको कंट्रोल करने में इनका मेजर रोल है. दे आर दी substances which used to control our natural life process like protein, carbohydrates, nucleic acids, etc. There are mainly two types of biopolymers. They are natural biopolymers and man-made polymers. Man-made biopolymers. Natural biopolymers are those polymers which are obtained from nature. They can be obtained from plants or animals. They are naturally occurring polymers which we get from the plants and animals. Examples of natural polymers are carbohydrates, proteins, nucleic acids, etc., starch, etc. The second type is man-made or synthetic biopolymers. These are biopolymers which are prepared synthetically. They are man-made polymers which are prepared by human beings in the laboratory, but they are biodegradable. That is one of the main part of this polymer. Here we are seeing four types of man-made biopolymers. The first polymer is PHBV. PHBV, the full form of PHBV is poly-beta hydroxybutyrate co-beta hydroxyvalerate. ये इसका फुल फॉर्म है. PHBV को बनाने के लिए 3-hydroxybutanoic acid का यूज किया जाता है. We use 3-hydroxybutanoic acid for preparation of PHBV. This PHBV is very important biopolymer in the, and this 3-hydroxybutanoic acid and 3-hydroxypentanoic acid are co-polymerized to form PHBV. Here we are watching this reaction. This is 3-hydroxybutanoic acid. ये 3-hydroxybutanoic acid है. जब 3-hydroxybutanoic acid और 3-hydroxypentanoic acid का co-polymerization होता है, तो इनके co-polymerization से जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है उसमें COOH ग्रुप का OH part, this OH part and this H part of हाइड्रोक्सी से this H part and COH ग्रुप का OH part इसमें से रिमूव होता है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर इनका कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है. तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इस तरह से होता है. दिस O, we start this chain from this O और O CH, इस CH से जुड़े हुए CH3 साइड चेन, देन CH2 C डबल बॉन्ड हो, ये C डबल बॉन्ड हो. फिर अगर हम नेक्स्ट पॉलीमर पे आते हैं, यहाँ से इसका ये H और COH का OH रिमूव होता है. दिस CO इज अटैच्ड विद दिस O. इस CO और ये ऑक्सीजन अटैच होते हैं CO. देन O, इस O से ये CH जुड़ा हुआ है. CH के साथ ये CH3 CH2 साइड चेन के फॉर्म में आ जाता है एंड CH2 C डबल बॉन्ड होला. दैट इज द पॉलीमर विच इज PHBV. PHBV को 3-hydroxybutanoic acid और 3-hydroxypentanoic acid के co-polymerization से बनाया जाता है. और यहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस में H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल होता है एंड चेन्स आर एड बाय ईच अदर. द नेक्स्ट बायोपॉलीमर which is synthetic is PGA, polyglycolic acid. PGA is the polymer which is prepared by the polymerization of glycolic acid. That is glycolic acid. CH2OH, COOH. That is glycolic acid. We use this number of polymers and by the heating, यहाँ पर जब इसकी हीटिंग होती है तो COH ग्रुप का OH पार्ट और OH ग्रुप में से H2O के फॉर्म में यहाँ पर H2O का रिमूवल होता है और जो चेन बनती है दैट इज फ्रॉम O CH2 C डबल बॉन्ड और डोनर, दैट इज PGA, polyglycolic acid. तीसरा बायोपॉलीमर है PLA, polylactic acid. PLA is polylactic acid. It is prepared by lactic acid.
इसका पॉलीमराइजेशन लैक्टिक एसिड से होता है। फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड इज CH, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पर C से जुड़ा हुआ CH3 ग्रुप और OH ग्रुप, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लैक्टिक एसिड। इसमें जब इसका पॉलीमराइजेशन होता है तो COOH ग्रुप का OH पार्ट और OH ग्रुप का H पार्ट इसमें से रिमूव होता है और ये यूनिट आपस में पॉलीमराइज हो जाती हैं। OCH3 C डबल बॉन्ड दैट इज PLA, ये पॉलीलैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो हमने पढ़े 3 प्रकार के बायोपॉलीमर्स। द फोर्थ बायोपॉलीमर इज नायलॉन टू नायलॉन 6। नायलॉन टू नायलॉन 6 को बनाने के लिए यहाँ पर हमने यूज किया CH2, COOH और NH2। इसकी रिएक्शन जो होती है दैट इज ग्लाइसिन, इट इज ग्लाइसिन, ओके। ग्लाइसिन के साथ अमीनो कैप्रोइक एसिड, दैट इज एमिनो कैप्रोइक एसिड। एमिनो कैप्रोइक एसिड और ग्लाइसिन दोनों मिलके कोपॉलीमराइज होते हैं। ग्लाइसिन एंड एमिनो कैप्रोइक एसिड व्हेन दे गेट कोपॉलीमराइज द फॉर्मेशन ऑफ नायलॉन टू नायलॉन 6 टेक्स प्लेस। यहाँ पर भी रिएक्शन जो होती है इसमें NH2 में से एक H का रिमूवल होता है, COH ग्रुप का OH रिमूव होता है। एक मॉलिक्यूल्स में से H2 निकला, यहाँ पर भी NH2 में से H निकलता है, COH ग्रुप का OH निकलता है, इनकी कॉम्बिनेशन हो जाता है। इस कॉम्बिनेशन को हम शुरू करते हैं NH से, NH देन CH2 C डबल बॉन्ड O, ये OH निकल चुका है तो CO जाके सीधे N से जुड़ेगा, यहाँ पर बचा हुआ एक H निकल गया तो NH, इस NH से CH2 होल ट्वाइस, सॉरी CH2 होल 5 एंड C डबल बॉन्ड। ये जो बना है ये नायलॉन टू नायलॉन 6 है। इस प्रकार जो पॉलीमर्स हमने पढ़े 4 प्रकार के मैनमेड बायोपॉलीमर्स, दे आर फर्स्ट इज PGA पॉली, सबसे पहले हमने PHBB पढ़ा, सेकेंड PGA पढ़ा पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, थर्ड इज PLA पॉलीलैक्टिक एसिड एंड फोर्थ इज नायलॉन टू नायलॉन 6। ये सारे बायोपॉलीमर्स बहुत यूजफुल होते हैं। ये सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जाते हैं बट दे आर बायोडिग्रेडेबल, एंजाइमेटिक एक्शंस के थ्रू ये बायोडिग्रेड हो जाते हैं। इन बायोपॉलीमर्स का यूज किया जाता है मेडिकल फील्ड में, टैबलेट्स बनाने में, टैबलेट की कोटिंग करने में, जो मेडिकल इम्प्लांट्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक सेट्यूर्स लगते हैं, जो टाके लगाए जाते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, सेल्फ डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टर वगैरह किया जाता है उसमें भी इनका यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो नेचुरल बायोपॉलीमर्स हैं वो हमारी जो बॉडी की एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं और लाइफ प्रोसेस को प्रोसीड करते हैं। और जो मैनमेड बायोपॉलीमर्स हैं इनका यूज़ हम डिफरेंट टाइप से करते हैं, चाहे वो मेडिसिन के फॉर्म में हो और ऑर्थोपेडिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में हो। इस तरह से डिफरेंट सर्विसेज हमको बायोपॉलीमर्स से मिलती हैं एंड दे आर वेरी सेफ फॉर एनवायरमेंट ऑल्सो। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडे। वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।